हेलो फ्रेंड, क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन क्लास की सीरीज़ में आज हम देखेंगे पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट फर्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स का चैप्टर 6, प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स। So students, first of all, we need to know about the pronunciation. Means, what is pronunciation? What are the need to pronounce any word correctly? As you know, whenever we meet any person in anywhere, everywhere, at any place, be spoken some words. These words listened by another person to receive information that provided by you using these words. If your words are correct, then other person who communicate with you understand clearly. Otherwise that person can't be able to receive your information and don't understand what are you saying actually. So in this video lecture we learn about pronunciation, how to pronounce word correctly. So let us see the definition of pronunciation and importance of pronunciation is that to communicate well when you speak, you need to know how to pronounce words correctly, because correct pronunciation will help you express yourself in a clear and confident manner. In this paragraph, we all know that the importance of pronunciation, because without right pronunciation of any word you can't be deliver your information to another person when you communicate to other person, right and correct pronunciation express yourself, be confident and be clear in manner. Otherwise your information that you would deliver to another person is useless, totally useless. So in that case, pronunciation may be very powerful, may be very important during to deliver information by spoken to another person in any kind of communication. So here a question arises on mind: how to pronounce this word correctly? Means, in our daily life we already speak many words, but that words are correct or not, I don't know. So here we will discuss about the correct pronunciation of words by giving some methods, some rules, some tricks. So let's see some words and try to speak loudly. Here we take three words are there: your, world, where. Again speak with me: your, world, where. Your, world, where. Also try to speak these words like shall, tell, tale. So in these four words there are so few differences to pronounce each of these words. मतलब इन चारों वर्ड्स को जब हम प्रोनाउंसिएट करेंगे तो बहुत
थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस हमें दिखाई देता है, अदरवाइज इनकी स्पेलिंग तो अलग अलग है, लेकिन इनका जो साउंड है लगभग लगभग एक जैसा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है हम लोगों के लिए बोलने के लिए कि इस तरह के जो वर्ड्स हैं उसमें मेजर थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन हम कभी कभी इस अंतर को भूल जाते हैं और एक जैसा प्रोनाउंस कर देते हैं। इससे क्या होगा, अगर आप किसी को डिक्टेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं टेल, तो वो ये वाला टेल लिखे या ये वाला टेल लिखे, तो यहाँ पर जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है कि वो जो है किस तरह कौन से जो है स्पेलिंग को रिसीव करेगा। सो हियर इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोनाउंस करेक्टली such like word. Okay, to rectify these problems during pronunciation of any words, we need to understand about how to speak and how to pronounce these words correctly. The best way to pronounce these words is to listen carefully and learn about the letter sounds, because letter sound is totally depend to pronounce any word correctly. If you don't about the sound of letters and words, you can't be able to speak correct pronunciation of any word. So let's know the sounds and importance of sounds to pronunciate any words. देखिए, साउंड जो होता है, लेटर्स के अपने अलग साउंड होते हैं। जब लेटर मिलकर के कोई वर्ड बनाते हैं तो उनका अपना एक अलग साउंड होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले साउंड को सीखेंगे, क्योंकि साउंड का जो रोल होता है किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएट करने के लिए, बहुत अच्छा तरीका होता है कि दो तरीके आपके पास हैं, या तो आप बोलने वाले को अच्छे से सुने, या फिर जो लेटर के जो साउंड हैं उनको आप सीख लें। तो सामने वाला जो बोल रहा है, जो लेटर वो बोल रहा है, उसके साउंड से आप उसकी करेक्ट स्पेलिंग समझ जाएं और आपका जो वर्ड है वो सही लिखा जाए। तो व्हाट आर साउंड? What are the importance of sound to pronunciate any words? Sounds helps us to pronounce words correctly, क्योंकि साउंड जो है किसी वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस करने के लिए हेल्प करते हैं, राइट? We all know that English alphabet has 26 letters and each letter has different sound that help to speak correctly. सबको पता है 26 लेटर होते हैं, लेकिन आज हम जो इसमें 26 लेटर के साथ खेलने वाले हैं, ये जो है सीखने वाली चीज़ है। लेटर सबको आते होंगे, लेकिन आज हम उनके साउंड्स के बारे में सीखेंगे, किस लेटर का क्या साउंड होता है और जब वो किसी दूसरे लेटर के साथ कंबाइन होते हैं तो उसका साउंड किस तरह से चेंज हो जाता है। क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में जो है साउंड का अपना एक अलग रोल होता है। लेट्स सी डिफरेंट साउंड ऑफ लेटर ए। यहाँ पे मैंने एक ए लेटर लिया है और 3 वर्ड्स मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। वैसे तो अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर साउंड देखा जाए, अपना एक यूनिक लेटर जो है आपका ए, उसका जो साउंड होता है वो ए होता है। इस तरह से हिंदी से हम इसको रिलेट करेंगे तो इस तरह से जो हमारा जो ए होता है, ये इस तरह का साउंड निकलता है, या फिर ये साउंड निकलता है, या फिर ये साउंड निकलता है। एक लेटर के इतने अलग अलग साउंड, लेकिन ये अलग अलग साउंड अपने अलग अकेले ए के नहीं होते हैं। ये जब किसी अदर कॉन्सोनेंट या किसी अदर वोवेल के साथ मिलते हैं तो इनका जो साउंड है इन 3 तरह से अलग अलग हो जाता है। देखिए, वैसे तो चलो वोवेल्स के बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ पर मैंने कैट, कार एंड कॉल लिया है। अब यहाँ पर जब ए यहाँ पर आया तो इसका जो साउंड ए और इससे मिलकर के बना कैट, और यहाँ पर भी ए है, इसका साउंड यहाँ पर अलग है आ, इसका साउंड निकल के आ रहा है कार, और यहाँ पर जो है ए है और इसका जो साउंड निकल के आ रहा है वो आ रहा है ओ मतलब कॉल। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है,
ये तीनों जगह सेम लेटर हमने यूज़ किया है ए, लेकिन तीनों का जो है अलग अलग अपना एक साउंड है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जब किसी लेटर का अपना एक यूनिक साउंड तो होता ही होता है, लेकिन जब वो किसी अदर लेटर के साथ कंबाइन होता है तो उसका साउंड चेंज हो जाता है। वैसे ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लेटर्स हैं, मैं ज़्यादा लेटर नहीं लिए हैं भाई, कि केवल एक ही लेटर लिया है। आप जो है और अदर लेटर ले करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं PDF जब इसका प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पर एक वर्कशीट आपको मिलेगी, और उस वर्कशीट में आपको ऐसे डिफरेंट लेटर, उसके साउंड्स, उससे बनने वाले वर्ड्स उसमें आपको कंप्लीट करने होंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे इन सारे साउंड्स को समझने के लिए। ओके, तो ये थे साउंड्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साउंड्स। साउंड्स के भी अपने एक टाइप्स होते हैं, क्लियर। जैसे हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हमने पढ़े हैं। 26 लेटर्स में से सारे के सारे वोवेल्स नहीं होते, सारे के सारे कॉन्सोनेंट नहीं होते, उसमें कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं, कुछ वोवेल्स होते हैं। तो वोवेल कॉन्सोनेंट्स मिलकर के अलग अलग तरह के साउंड्स क्रिएट करते हैं, उन्हीं को हमने टाइप्स में डिफाइन किया है। हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ साउंड्स। ओके, टाइप्स ऑफ साउंड्स। ऑल इंग्लिश वर्ड्स आर मेड ऑफ 3 बेसिक टाइप्स ऑफ साउंड। जितने भी आपके इंग्लिश वर्ड हैं वो टोटल 3 टाइप्स के साउंड में बटे हैं, यानी कि 3 तरह के साउंड्स उनके निकलते हैं। जितने भी इंग्लिश लेटर्स होते हैं, 26 लेटर जो होते हैं हमारे पास। फर्स्ट आपका जो लेटर है, यानी कि साउंड है फर्स्ट टाइप का, वोवल साउंड। देखिए, वोवल को आप अच्छे जानते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वोवल्स, AEIOU, बट 12 वोवल साउंड पर 5 वोवल होते हैं, लेकिन साउंड कितने होते हैं उनके? 12 होते हैं। अभी हमने पीछे एक एग्जांपल लिया था, एक लेटर ए, लेकिन उसके साउंड कितने निकल रहे हैं? 3 निकल रहे हैं। इस तरह से किसी के 2, किसी के 3, इस तरह से अलग अलग साउंड निकलते हैं। तो टोटल जो है 5 की जगह कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। क्लियर? लेट्स सी सम वोवल्स एंड देयर साउंड्स। हियर वी टेक 3 words and a common letter I is there, all these 3 words। तो इसमें समझना क्या है, देखिए यहाँ पे I है, I को हम रिलेट कर रहे हैं कि I के तीनों अलग अलग किस तरह से इसको हम साउंड या वर्ड के साथ किस तरह से इसकी आवाज़ या साउंड निकल के आएगी। देखिए, बिट, BIT, यहाँ पर जो है I इस तरह का साउंड निकल के आ रहा है, बिट यानी कि छोटी का साउंड निकल के आता है। और यहाँ पर काइट, तो यहाँ पर भी छोटी का साउंड निकल के आता है। यहाँ पर आइस, तो यहाँ पर आई का साउंड निकल के आ रहा है। देखिए, आई का ही साउंड निकल के यहाँ पर आ रहा है। तो ये अलग अलग तरीके के साउंड्स हो सकते हैं। एक वोवेल लेटर के 3 या 2 या 3 जो है साउंड हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका साउंड आता है डिप्थोंग। ओके, क्या आता है? डिप्थोंग। अब डिप्थोंग क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड ऑफ 2 वोवल्स, यानी कि 2 वोवल्स का कॉम्बिनेशन, साउंड का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? डिप्थोंग कहलाता है। दीज साउंड स्टार्ट एज 1 वोवल साउंड एंड गो टू अनदर, यानी कि एक वोवल से स्टार्ट होकर के दूसरे वोवल की तरफ जाते हैं। यानी कि वोवल का अपना यूनिक साउंड होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब डिप्थोंग की अगर बात आती है, डिप्थोंग टाइप्स ऑफ साउंड्स की, तो वहाँ पर 2 वोवल मिलकर के साउंड निकलता है। और साउंड किस तरह से निकलता है? एक वोवल से स्टार्ट होकर के दूसरे वोवल के साउंड से जाकर के मिल जाता है। लेट्स सी सम डिप्थोंग्स। हियर वी टेक 2 words are there, house and mouse. Here OU, and in this OU, both these words has 2 vowels, O and U. O and U both are vowels. Here we will discuss, and sounds are there, oo, au. Okay, oo नहीं, au, au। तो पहले क्या होता है कि यहाँ ओ का जो साउंड निकल के आ रहा है उसके साथ यू का साउंड भी निकल गया, आउ। आप थोड़ा 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये डिप्थोंग क्यों है। डिप्थोंग का एक रूल है कि एक वोवल से निकल साउंड स्टार्ट होता है पहले वोवल से, वो अंत होता है दूसरे वोवल के साउंड में जाकर के वो मिल जाता है। तो दोबारा से आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से, आउ आउ। तो इस तरह से ओ की और आउ की, यू की जो है, दोनों का साउंड यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो इस तरह के जो साउंड होते हैं 2 वोवल से मिलकर के बनते हैं, वो कहलाते हैं डिप्थोंग। तो जैसे हाउस, माउस। क्लियर? तो इस तरह से और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, आप जो है प्रैक्टिस करेंगे। PDF लिंक में आपके इस तरह से बहुत सारे
जो है एक्सरसाइज वर्क प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कॉन्सोनेंट साउंड। आप जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? वैसे तो पूछना तो नहीं चाहिए, आपको पता ही है। 21 जो है टोटल कॉन्सोनेंट्स होते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट्स के कितने साउंड्स हैं आज तक किसी को नहीं पता। ओके, क्योंकि अलग हर कॉन्सोनेंट लेटर का दूसरे लेटर के साथ जब मैच होता है अलग तरह का साउंड निकलता है, तो ये अनकाउंटेबल साउंड्स हैं। इसके साउंड्स को जो है काउंट करना पॉसिबल नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे साउंड्स हैं। ओके, हाँ ये ज़रूर है कि 21 साउंड तो ऑलरेडी है कॉन्सोनेंट के, क्योंकि हर कॉन्सोनेंट का अपना यूनिक तो साउंड होता ही होता है, लेकिन दूसरे लेटर के साथ मिलकर वो किस तरह का साउंड बनाते हैं ये नहीं कह सकते हैं। क्लियर? तो देख लेते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं। एनी साउंड दैट इज नाइदर अ वोवल नॉर अ डिफ्थोंग साउंड्स, यानी कि ऐसा साउंड जो ना तो वोवल साउंड हो ना ही डिफ्थोंग हो, वो एक अलग ही तरह का साउंड होता है, वो आपका कॉन्सोनेंट कहलाता है। जैसे हम जब बचपन में इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ते थे और वोवल या कॉन्सोनेंट्स जो है पूछा जाता था हमसे, तो हम वोवल कॉन्सोनेंट को कैसे पढ़ते थे? भाई कॉन्सोनेंट तो ज़्यादा होते हैं, 21 होते हैं, तो हमने या तो कॉन्सोनेंट पढ़ लिए याद कर लिए, या वोवल याद कर लिए, बाकी बचे। जैसे मान ली किसी ने 5 वोवल याद कर लिए, उनसे पूछा भाई कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? भाई इनको छोड़ करके सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यही तरीका है कि आप वोवल और डिप्थोंग साउंड को छोड़ करके जो अदर साउंड होते हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स में चले जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है यहाँ पर अपने प्रोनाउंसिएशन को क्लियर करने का, अच्छे से किसी वर्ड को करेक्टली स्पीक करने का, जिसको बोलते हैं फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या है? फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द साउंड। साउंड पर की जाने वाली रिसर्च स्टडी को हम फोनेटिक्स कहते हैं। इस फोनेटिक्स स्टडी में ये चीज़ पाई गई है कि जितने भी वर्ड्स होते हैं उसमें सिखाया गया है कि जितने भी लॉन्ग वर्ड्स होते हैं उसको हम किस तरह से प्रोनाउंस कर सकें, किस तरह से उसको स्पीक कर सकें, लेंथी वर्ड्स को हम कैसे करेक्टली बोल सकें या लिख सकें। इस तरह की जो स्टडी है वो फोनेटिक्स कहलाती है। लेट्स सी सम वर्ड्स एंड ट्राई टू प्रोनाउंस विद हेल्प ऑफ फोनेटिक्स। क्लियर? तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिए हैं केवल एग्जाम्पल के तौर पर कि हम किस तरह से फोनेटिक्स स्टडी का यूज़ करके किसी लेंथी वर्ड्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। वैसे हिंदी ग्रामर में भी जो सिखाया जाता है, ठीक है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये कैट और बुक मैंने दो यहाँ पर एग्जाम्पल लिए। कैट में देखिए सी का अपना एक साउंड होता है का, ए का अपना एक साउंड होता है आए, और टी का अपना साउंड होता है टा। अब इसको हम करें कैट, क्या पढ़ेंगे? कैट कैट। बहुत से कैट कैट बोलते हैं, कैट नहीं होता, कैट है ना। एक बार और ट्राई कीजिए, कैट कैट, इस तरह से। ओके, तो इस तरह से हम जब अलग अलग कर लेंगे तो हर चीज़ का, हर लेटर का साउंड अपने आप में एक अलग निकल करके आएगा। नेक्स्ट लिखा बुक, बुक बुक बुक। ओके, बुक बुक, इस तरह से हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका है, एक फोनेटिक्स में ये चीज़ सिखाई जाती है कि हम किसी लेंथी वर्ड्स को किस तरह से सही तरीके से पढ़ सकें। सो फ्रेंड्स, ये था आज का चैप्टर प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स। इसमें हमने सीखा कि प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसके रोल क्या होते हैं, और किसी वर्ड को हम किस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसमें एक रूल आपको दिया है फोनेटिक्स का, आप यूज़ करेंगे और किसी भी लेंथी वर्ड्स को उसके लेटर साउंड से मैच करके एक अच्छी तरीके से उसको क्लियरली एक राइट मैनर में उसको हम आसानी से किसी वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हैं। सो गाइस, ये कोई ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं है, ना ही लेंथी चैप्टर है। इसमें लग रहा होगा कि हमें बहुत चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। देखिए, ये चीज़ एक ऐसी है, प्रोनाउंसिएशन एक ऐसी चीज़ है कि जिसको जितना प्रैक्टिस किया जाए उतना ही आप जो उसको सीखेंगे। जिस वर्ड को जितनी बार आप बोलेंगे उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उतना ही ज़्यादा क्लियर आपको होगा। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में जो आपको PDF मिलेगा, वहाँ पर मैं बहुत सारे ऐसे वोवल साउंड, कॉन्सोनेंट्स, डिफ्थोंग्स एंड फोनेटिक्स स्टडी पर बेस्ड फोनेटिक स्टडी में बहुत सारा आपको एक एक्सरसाइज देने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, उन जो है जितने भी लेटर्स, जितने वर्ड्स आपको मिलेंगे उसको आप जो है इसी तरह फोनेटिक्स स्टडी रूल्स का यूज़ करके उसको आप पढ़ करके देखना है, प्रैक्टिस करना है। बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। यहाँ पर कहेंगे प्रैक्टिस मेक यू प्रोनाउंस क्लियरली। ओके, सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।